Hello, aspirants, and welcome back to our channel. Today we'll have The Hindu analysis dated 13th October 2021. So, let's start today's discussion. The first article is about government announced plastic waste recycling target. Now, as we know about the global warming, increase in the temperature, the use of plastics, and therefore the government has came up with a new target of recycling the waste plastic in a different layers. Okay, so this article is important for you from prelims point of view. If question will be asked that recycling is done in which way. Okay, so the environment ministry, first of all, it is under the ministry of environment. Make it remember, it's from the ministry of environment that this initiative is being done. So the environment ministry has issued draft rules that the Environment Ministry has issued a draft rule that mandates the producers of plastic making materials to collect all they are produced by 2024. So it simply means that if I am a producer, if I am producing any product of plastic, okay, and if I am doing its market mein, if I have given it, and then it's my responsibility that till 2024 the plastic that I have made should be recycled way in a proper way. Packaging material to collect all the produce by 2024 and ensure that minimum percent of it be recycled as well as used in the subsequent supply. First of all, your first step that you should take is you should use minimum plastic that is possible by you. Okay. Second, if you are using it, if you are using the plastic, always keep in mind that you will have a minimum supply of it. Don't use it on a large scale. So it has also specified the system wherein by makers and users of plastic packaging will collect it by a certificate. Now this certificate is also important. In prelims it can ask. So certificate by name of extended producer responsibility, EPR. Now if question is there, what is EPR, extended producer responsibilities, in which context, is in plastic, is in environment, or what? So you should remember it is for the recycling of the plastic waste. So we'll collect the certificate called extended producer responsibility certificate and trade in them. The notification was expected to come in force from 6 December. As of now was open to public feedback. So this is always done in India whenever a new scheme is initiated with in contest of public or in contest it for public, it has always been given in for a feedback that how does the public, how does the citizens think about this project. So now it was open for the feedback, and only a fraction of the plastic that cannot be recycled, such as multi-layered plastics, would be eligible to send at the end of disposal. Now that in this also, when we come to plastic recycle, they have divided into three ways that you can use or you can recycle the plastics in three way. Okay, so the first plastic made is, it is known as rigid plastic. Rigid. Second is flexible, and third is single, or we can say multi-layered. Now why single and multi-layered? Now there are some type of plastic which can be used singly, or it is multi-layered plastic, so you can't recycle it, and therefore it is said as single plastic, that once it is used you have to end its life, or it's you have to dispose it. Whereas first rigid and flexible are that type of plastic which can be recycled. Okay, so they have classified the plastic packaging as per the rules that falls under three category. First is the rigid plastic, second is the flexible plastic, and third is the multi-layered or a single plastic. Okay, these are the three different type of categories that they have made. Producers of the plastic would be obliged to declare the government via annual central report that at least 35% of the target. Now they have divided this target into different years. As I told, it was till 2024 उनको plastics को ये करना है. So अगर 2021-22 को देखें तो they have stated 2021-22 तक you have to at least 35% of plastic recycle करना है. उसके बाद 22-23 तक
हाँ 20 to 23 तक 70 एंड फिर 23-24 तक 100% रिसाइकल आपको करना है। तो ये टारगेट रखा है कि इस मेथड के थ्रू बाय 2024 वी विल बी एबल टू रिसाइकल 100% ऑफ द प्लास्टिक पैकेजेस और द प्लास्टिक्स दैट आर मेड इन इंडिया। Okay, in 2024 minimum 50% of the rigid plastics would be recycled, as would 30 of the category of second and third. So इसका सिंपल मतलब क्या है, 2024 तक जो रिजिड प्लास्टिक है उसका 50% तक तो रिसाइकल होना चाहिए, जब तक कि अगर मैं बात करूँ फ्लेक्सिबल और सिंगल लेयर जो है उनका कम से कम 30% का तो होना ही चाहिए। ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाना चाहिए इतना। तो दिस आर्टिकल में what things will you remember? It is under the Environment Ministry. Second, about the EPR, that is the external it's EPR, external producer responsibility. It is related to what? So recycling, ठीक है। रिसाइकलिंग को किसने कितने पार्ट में डिवाइड किया? 3 पार्ट्स में, दैट इज रिजिड, फ्लेक्सिबल एंड मल्टी लेयर्ड और सिंगल यूज, ठीक है। So these are some things you should remember. Now the next article states that judges appointed to Madras, Allahabad and Guwahati High Courts. Now if you are reading the newspapers, you will notice that from few days the appointment of judges is recently in air. ठीक है, the Chief Justice of India are appointing different judges at the different state. So now through this article we'll revise once the appointment of the high judge or the high court judges, how are they been appointed, what are its eligibility and so on. Okay, so the first thing in this we'll know about the article and then we'll go to the hamara basic static data. So static information. So Supreme Court Collegium had put forth the names. उन्होंने हाई कोर्ट मद्रास, इलाहाबाद और गुवाहाटी के हाई कोर्ट के लिए, हाई कोर्ट के जजेस के लिए नाम्स लिस्ट प्रोवाइड किया है। The Law Ministry on Tuesday notified the appointment of 15 lawyers and 2 judicial officers as the judges of Madras, Allahabad and Guwahati High Court. Judicial officer Marli Wangkung, who has been appointed as a judge of the Guwahati High Court, is not only the first woman judge from Mizoram but also the first high court from the state, high court judge from the state. Last month we studied that it was there that Chief Justice of India Mr. Ramna said that this time we'll try to have more women judges, and our government also initiated the reservation for the women in judges, and somehow this is the result of it, that in Supreme Court currently out of the 9 main judges, 3 judges are women. Same thing is done in this also. The Guwahati High Court, first woman judge has been appointed there. Between August 8 and September 1, the Supreme Court Collegium had processed over 100 names recommended by various high courts and finally sent 68 names to the government for the appointment of 12 courts. In total 12 courts के लिए 68 judges का नाम दिया था. On 24th August, the Collegium recommended 8 lawyers who had now been appointed as judges in the Allahabad court, as they are Chandra Kumar Rai, Krishna Pahal, Sameer Jain, many other judges name are there. फिर सितंबर में सेम कॉलेजियम ने recommend किया कुछ जजेस फॉर मद्रास हाई कोर्ट. सो पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट का अगस्त में हुआ, सितंबर में मद्रास हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंट किया, एंड गुवाहाटी हाई कोर्ट का तो रिसेंटली किया गया है, जिसमें वुमेन्स को अपॉइंटमेंट या वुमेन्स को मौका दिया है टू बी द जज. The 3 additional judge of High Court, Guwahati High Court, Soumitra Saiki, Parthiv Jyoti Saiki and Hukoto were confirmed as judges on Tuesday. So this is the article that recently they have been appointed. अब इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे? We'll study about the judicial appointment of the High Court judges. How are they appointed? What are their rules? What are their functions? Okay. So very first thing that you should know is कौन अपॉइंट करता है. सो हमारे यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ लॉ के अंदर वी हैव अ कॉलेजियम, जिसको नेशनल जुडिशियल कॉलेजियम भी हम बोलते हैं, नेशनल एडवोकेट जुडिशियल कॉलेजियम भी बोलते हैं. वो हमारे जजेस अपॉइंट करते हैं, ठीक है. एंड अपॉइंटमेंट ऑफ द हाई कोर्ट जजेस कौन से आर्टिकल में होता है? सो हमारा आर्टिकल 217 स्टेट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन दैट
it states that judges of the High Court shall be appointed by the President in the consultation of whom? In the consultation of Chief Justice of India and Governor of the state. Obviously, if it is related to High Court, so the Governor of the state is also important, and therefore it has stated that Article 217 states कि appointment जो है President के through किया जाएगा with the recommendations of the Chief Justice of India and the Governor of that particular state. ठीक है. In case of appointment of the judges other than Chief Justice, the Chief Justice of High Court is also consulted. ठीक है. Now if अगर मैं बोलूँ कि चीफ, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट में हमारे सुप्रीम कोर्ट पे लेवल पे जैसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, सेम हाई कोर्ट के लेवल पे भी चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट भी होते हैं. तो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के अपॉइंटमेंट के लिए कौन होता है? तो प्रेसिडेंट करता है विद द हेल्प ऑफ और रिकमेंडेशन ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. ठीक है. सो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के लिए सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और प्रेसिडेंट करते हैं. ठीक है. नाउ नेक्स्ट थिंग, इट इज़ हाउ इट इज़ डन. सो इट इज़ डन थ्रू द कोलोजियम मेथड. जो हमारा कंसल्टेशन बॉडी है मेन, वो प्रेसिडेंट को नाम देगा. जैसे कोलोजियम अगर मैं बात करूँ, हमारा जो जुडिशियल कोलोजियम है 5 मेंबर्स होते हैं, जिसके हेड हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं. सो वो रेकमेंड करते हैं नाम गवर्नर्स को और प्रेसिडेंट को फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस. सो मेन जजेस का अगर जो हाई कोर्ट जजेस हैं वो 217 के आर्टिकल से होते हैं. वही अगर एडहॉक जजेस अब अपॉइंट करते हैं, एडहॉक का मतलब क्या होता है? टेम्परेरी जजेस, एक्टिंग जजेस. तो एक्टिंग जजेस का जो अपॉइंटमेंट होता है दैट इज डन बाय 224A के अंदर वी अपॉइंट दी एक्टिंग जजेस. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ इलाहाबाद हाई कोर्ट के 3 जज बेंच है. ठीक है. 3 जज बेंच में से जो मेन हेड है वो शायद एब्सेंट है, रिज़ाइन किया, या कुछ भी एक रीज़न हो सकता है. सो उसमें क्या होगा, जो एडहॉक जजेस हमने बनाए होंगे वो जाके कुछ दिन के लिए वहाँ पे एज अ जज काम करेंगे, एज अ जज एक्ट करेंगे. ठीक है. सो एडहॉक जजेस की अपॉइंटमेंट 224A आर्टिकल के थ्रू की जाती है. सो अंडर दिस आर्टिकल चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट फॉर एनी ऑफ द स्टेट्स विद द प्रीवियस कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट रिक्वेस्ट एनी पर्सन हु हैज़ हेल्ड द ऑफिस ऑफ जज फॉर अ टाइम टू एक्ट एज अ जज. ठीक है. सो फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं मुंबई, महाराष्ट्र, मुंबई लेते हैं. मुंबई हाई कोर्ट के अगर हम लेते हैं, जो वन ऑफ द मेन जज हैं वो एब्सेंट है. सो क्या होगा, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट जो है पहले से ही प्रेसिडेंट के रेकमेंडेशन पे, प्रेसिडेंट के परमिशन पे एक जज को ला के रखेंगे जो कि एडहॉक जज होंगे. अगर वो जज नहीं रहे तो उनके जगह पर वो रोल प्ले करेंगे. ठीक है. सो रिसेंटली रिटायरमेंट हुआ था बहुत सारे जजेस का, और इनकी ही रिटायरमेंट जजेस में से बहुत लोगों को अपॉइंट किया है फॉर डिफरेंट पोजेस. ठीक है. नाउ कोलोजियम सिस्टम आप लोग को समझ गया. कोलोजियम सिस्टम क्या है कि ट्रांसफर ऑफ जजेस हैज़ बीन इवॉल्व थ्रू अ जजमेंट एंड इट इज़ नॉट, कोलोजियम जो है हमारा NAJAG जो है ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है या कोई पार्लियामेंट के एक्ट के अंडर नहीं आता. ये सिर्फ फंक्शनिंग के बेसिस पे बनाया गया है. जस्ट लाइक नीति आयोग. नीति आयोग इज़ नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, इट इज़ जस्ट फॉर अ मेन फंक्शनिंग, फॉर ईजी फंक्शनिंग. सिमिलरली जो हमारा नेशनल जुडिशियल एडवोकेट कोलोजियम है, ये कोई भी एक तरह का पार्लियामेंट की बनाई हुई चीज़ नहीं, फॉर फंक्शनिंग के लिए ये बॉडी बनाया गया है. सो दोनों आर्टिकल्स आपको याद होने चाहिए कौन से आर्टिकल के अंदर होता है और एडहॉक जजेस का मतलब क्या होता है एंड सो ऑन. ठीक है. नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल. द नेक्स्ट आर्टिकल स्टेट्स दैट मोदी टू लॉन्च मास्टर प्लान फॉर मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी. मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी की अगर हम बात करें, ये चीज़ मिस्टर मोदी ने बहुत सारे अपने स्पीचेस में बोला है कि इंडिया के कंटेक्स्ट में जो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट है, जो मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट डेवलपमेंट है, दे हैव बीन लैकिंग एट वेरियस प्लेसेस. सो टू इम्प्रूव इट, to bring development in the country, Mr. Modi or the BJP government has brought many of the multi-modal connectivity project. Just like कुछ दिन पहले हमने पढ़ा था about सागरमाला प्रोजेक्ट. सागरमाला प्रोजेक्ट क्या है? सी वे से यू गो टू अनदर प्लेस, कनेक्टिविटी बन रहा है इसी बहाने में. सो उसी के अंडर एक मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट जो है, दिस ईयर एज वी नो इट वॉज द 75th इंडिपेंडेंस डे. ठीक है. सो उसी दिन पर हमारे बीजेपी गवर्नमेंट ने ये चीज़ अनाउंस किया, एक नया प्रोजेक्ट विच इज़ बाय द नेम ऑफ PM शक्ति गति शक्ति. आई एम रियली सॉरी, गति शक्ति. गति इज स्पीड. ठीक है. सो डेवलपमेंट में
to boost the development. Prime Minister Narendra Modi will launch a national master plan for multimodal connectivity called PM Gati Shakti on Wednesday, the Prime Minister office said on Tuesday. ठीक है, कल ही ये चीज़ रिलीज की डिक्लेयर किया गया. द PMO सेड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हैज़ फेस्ड मेनी मोर प्रॉब्लम्स फॉर decades, including the lack of coordination between the department, leading for multiple agencies digging up the roads, laying cables, pipeline. जैसे नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन एक प्रोजेक्ट है, क्यों? ताकि ये सब में अगर ये एक होलिस्टिक प्रोजेक्ट्स हैं, सो दैट टू ब्रिंग डेवलपमेंट ऑल ओवर दी कंट्री. ओके, सो हाँ, this not only caused great inconvenience, but also it was a dreadful expenditure. So PM Gati Shakti will address the past issues from the institutionalizing the holistic plannings for the stakeholders. Infrastructure plans would be designed and executed with the common vision instead of being at the silos, it said. The master plan would cover projects from many ministries, जैसे कि भारतमाला क्या है, सागरमाला क्या है, सब मैं बताऊंगी आप लोगों को. उड़ान, टेक्सटाइल क्लस्टर्स, कॉरिडोर, पार्क, इंडस्ट्रीज, मूवमेंट्स ऑफ द पीपल्स एंड गुड्स वुड बी मेड सीमलेस विथ मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट. अभी इसका एक सिंपल एग्जाम्पल मैं बताऊँ. विल टेक 2 कंट्रीज, वन इज़ USA. ठीक है, USA ले लेते हैं, एक हम इंडिया ले लेते हैं. ये चीज़ हम मान सकते हैं कि इंडिया की कनेक्टिविटी इज़ मच मोर वे फॉरवर्डेड दैन USA. क्यों मैं ये चीज़ बोल रही हूँ? इट इज़ बिकॉज USA में इफ़ यू वॉन्ट टू ट्रैवल, if you want to go from one state or one city to another city, there is no train facility, actual train facilities. मेट्रोज जो हैं वो अभी बनना स्टार्ट हुआ है, कुछ ही जगहों पर है, ट्रेन फैसिलिटी नहीं है. या तो यू हैव टू टेक अ फ्लाइट और एल्स यू हैव टू टेक अ कार. वेरएज इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करें, इंडिया की कनेक्टिविटी इज़ वे मोर बेटर देन इट, बिकॉज वी हैव अ प्रॉपर ट्रेन फैसिलिटी, वी हैव सी रूट, वी हैव रोडवेज, एयरवेज. ठीक है, सो कनेक्टिविटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ कंट्रीज डेवलपमेंट, बिकॉज समटाइम्स इट कैन बिकम अ हिंडर फॉर यू. ठीक है, एंड सो कनेक्टिविटी इज़ वेरी important. To improve the connectivity to bring a holistic development all over the countries, PM Narendra Modi has launched the scheme. So first I'll let you know about Gati Shakti क्या है, सागरमाला क्या है, भारतमाला क्या है. You will let me know about the उड़ान स्कीम. और ये जो उड़ान मास्टर प्लान है, ये उड़ान क्या है, इसके बारे में आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे. एंड कुछ दिन से स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से आंसर्स दे रहे, सो वेरी गुड, यू आर स्टडिंग वेरी वेल. सो सबसे पहले अगर मैं आप लोगों को बताऊं अबाउट द गति शक्ति इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान. ठीक है, गति शक्ति इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान क्या है? तो इंडिपेंडेंस डे के दिन PM मोदी ने अपने स्पीच में ये चीज़ बोला कि विल रिलीज अ न्यू प्लान बाय द नेम ऑफ इट, एंड इट इज़ अ नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर प्लान. ठीक है, विच विल एक्चुअली ले अ फाउंडेशनल लेवल, अ फाउंडेशनल बेस बनेगा, तभी जाके जो मेजर डेवलपमेंट्स होंगे. सो ये स्कीम के बारे में अगर हम बात करें, दिस स्कीम इज़ मोर देन 100 लाख करोड़ rupees scheme, which will actually we can say bring development to a country in many way. For example, अगर मैं पहले आपको सागरमाला बोलूँ, सागरमाला प्रोजेक्ट के बारे में मैंने आपको बताया था कि सी वे के थ्रू यू विल रीच टू अनदर प्लेस. फॉर एग्जाम्पल मैं ले लेती हूँ, मैं रहती हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं लेती हूँ, हाँ, आई लिव इन बोरीवली. ठीक है, आई लिव इन बोरीवली, आई लिव इन कांदीवली, एंड मुझे यहाँ से अब शिरडी जाना है. ठीक है, सो आई वॉन्ट टू गो टू शिरडी. दोनों ही जगह महाराष्ट्र का पार्ट है, राइट. बट अगर मुझे शिरडी जाना होगा तो या तो आई हैव टू टेक अ कार, 4 आवर्स 5 आवर का रास्ता, या फिर ट्रेन, मतलब पासिंग ट्रेन लेने पड़ेंगे. सो अब क्या किया है सागरमाला प्रोजेक्ट्स में, सी वे के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन स्टार्ट किया है, ताकि मैं यहाँ से, मतलब बोरीवली हूँ तो बोरीवली से पास का कोई सी रूट पकड़ के मैं डायरेक्टली शिरडी पहुँच सकती हूँ. आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल. सो इसकी वजह से क्या होगा कि अगर ये लोग प्रॉपर सी रूट बनाएंगे, दैट मीन्स दे नीड मैन पावर रहेगा, एम्प्लॉयमेंट होगा, इनकम आएगा, इनकम होगी, सेविंग्स आएगी, सेविंग्स होगा, इन्वेस्टमेंट आएगा, मनी लिक्विडिटी बढ़ेगी, इकोनॉमिक फंक्शन करेगा. सो इसी वे में जो ये प्लान है about the Gati Shakti plan is actually telling that it will result in a new employment opportunity for lakh of the youths. ठीक है, इंजीनियर्स, मतलब वाइट कॉलर जॉब से लेके हमारे
ब्लू कॉलर जॉब, सभी को एक अपॉर्चुनिटी मिलेगा टू अर्न फॉर देम. सो द प्लान विल हेल्प टू रेज द ग्लोबल प्रोफाइल फॉर लोकल मैन्युफैक्चरर्स एंड हेल्प देम टू कम्पीट विद द काउंटर पार्ट वर्ल्ड वाइड. ठीक है. सो इसमें क्या है, इट विल ऑल्सो रेज द पॉसिबिलिटीज फॉर न्यू फ्यूचर इकोनॉमिक जोन्स. सो इसमें इकोनॉमिक जोन्स बनाने का भी एक प्लान है इसी के अंदर. नाउ इन द बजट ऑफ 2019-20 फाइनेंस मिनिस्टर आउटलेड, बजट में ये चीज़ बताया था 100 लाख करोड़ का एक प्रोजेक्ट बनाया जाएगा विच विल बी फॉर नेक्स्ट 5 years के अंडर. सो दिस नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, जिसको हम शक्ति गति या गति शक्ति बोलते हैं, इट इज़ अ फर्स्ट काइंड ऑफ इनिशिएटिव टू प्रोवाइड वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर्स अक्रॉस द कंट्री. सो इट विल इम्प्रूव द प्रेपरेशंस एवरीथिंग, डोमेस्टिक और फॉरेन लेवल पे सभी तरह का जो फिर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना होगा वो सब ये लोग बनाएंगे. ठीक है. सो जैसे कि अगर मैं बोल रही हूँ पाइपलाइन, देन अगर कनेक्टिविटी, रोडवे कनेक्टिविटी अगर मुझे बनाना है, सीवे कनेक्टिविटी मुझे बनाना है, एयरवे कनेक्टिविटी मुझे बनाना है, मेट्रोज़ का फंक्शन करना है, मेन कनेक्टिविटी को लेकर ये सारे प्रोजेक्ट्स बनाए जा रहे हैं. ठीक है. तो कभी ये क्वेश्चन अगर पूछा गया कि गति शक्ति किस रिलेटेड है, इज इट रिलेटेड टू ओनली एयरवेज और ये, तो ऑलवेज रिमेंबर इट इज़ रिलेटेड टू द कनेक्टिविटी ऑफ इंडिया ओवर ऑल द कंट्री एंड होलिस्टिक प्रोजेक्ट्स फॉर कनेक्टिविटी ऑफ द कंट्री. ठीक है. नेक्स्ट अब मैं बताऊं, ये जैसे गतिविधि मैंने आपको समझा दिया, गति शक्ति. गति शक्ति के बाद है नेक्स्ट आपका जो यहाँ पे दिया है भारतमाला. ठीक है. भारतमाला क्या है, जैसे सागरमाला इज फॉर सागर, सागर मतलब वाटर, सेम भारतमाला इज फॉर दी लैंड कनेक्टिविटी. इम्प्रूवमेंट फॉर द एफिशिएंसी ऑफ कॉरिडोर्स, प्रॉपर कॉरिडोर्स या फिर मल्टी लॉजिस्टिक पार्क्स बना पाए इसके अंडर. टू फोकस ऑन द इम्प्रूविंग कनेक्टिविटी ऑफ नॉर्थ ईस्ट एंड विद द इनलैंड वाटरवेज, देन टू एम्फसाइज ऑन द टेक्नोलॉजीज. सो जैसे कि अगर मैं बात करूँ अभी, अगर इंडियन मैप अगर हम देखें, हमारा नॉर्थ इंडिया और हमारे मेन लैंड इंडिया को कनेक्ट करता है ये पार्ट, सिर्फ लैंड वे जाना पड़ेगा, सी वे जाना पड़ेगा. तो एक प्रॉपर कॉरिडोर बना सके ताकि कनेक्टिविटी मेंटेन रहे. सो भारतमाला इज़ फॉर द लैंड कनेक्टिविटी, सागरमाला इज़ फॉर द सी कनेक्टिविटी, जो कि यहाँ पे लिखा है इन लैंड वाटरवेज, ड्राई पोर्ट्स. उड़ान के बारे में आप मुझे बताएंगे, टेक्सटाइल क्लस्टर्स, डिफेंस कॉरिडोर्स, इलेक्ट्रॉनिक पार्क्स, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, फिशिंग क्लचर्स एंड एग्रीकल्चरल जोन. तो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स तो हमें पता है, जैसे हम लेते हैं दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हो गया, हमारा इकोनॉमिक जोन्स बनाना हो गया. सो ये सब एक तरह का बेस लेवल वर्क है ताकि अगले 5 साल के अंदर, अगले 10 साल के अंदर यू विल सी डेवलप्ड इंडिया. नाउ इंडिया इज इन डेवलपिंग, 10 years आफ्टर यू विल सी इंडिया एज अ डेवलप्ड कंट्री. सो मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स में यही सब चीज़ें था. तो आप ये आर्टिकल आपको समझा होगा. नेक्स्ट आर्टिकल जो है ये हमारा एक एडिटोरियल आया था रिलेटेड टू वन ऑफ द डिजीज दैट इज सिलिकोसिस. ना सिलिकोसिस का वर्ड अगर आप देखोगे यू विल थिंक और यू विल गेट टू नो कि सिलिकॉन के रिलेटेड है, राइट. सिलिकोसिस ये जो डिजीज़ है इट इज़ एक्चुअली अ लंग्स डिजीज़, जिसमें कि जो लंग्स में आपको सिलिकॉन डिपोजिशन होना स्टार्ट करता है, विच कैन लीड यू निमोनिया या लंग प्रॉब्लम्स, हार्ट प्रॉब्लम्स बहुत होते हैं. ठीक है. तो ये आर्टिकल बेसिकली आया क्यों था, डू नॉट ब्रीथ ईजी ऑन सिलिकोसिस प्रिवेंशन पॉलिसी. एक बैकग्राउंड अगर मैं बता दूँ, इंडिया की अगर हम बात करें, इंडिया एज अ डेवलपिंग कंट्री, इंडिया हैज़ मैनी ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग स्टेट्स, मैन्युफैक्चरिंग प्लेसेस वे वर्कर्स वर्क फॉर दी पीपल. ठीक है. वर्क फॉर गवर्नमेंट टू मेक डिफरेंट आइटम्स और मैन्युफैक्चरिंग. सो ये जो प्रोजेक्ट है बेसिकली ये वर्कर्स को लेकर है, क्योंकि ये चीज़ नोटिस किया गया था राजस्थान में. राजस्थान की अगर मैं बात करूँ, राजस्थान इज सच अ स्टेट ऑफ इंडिया विच एक्चुअली कॉन्ट्रीब्यूट 17% ऑफ द वैल्यू ऑफ द मिनरल प्रोडक्शन ऑफ द कंट्री. ठीक है. और ये सिर्फ आज से नहीं, बहुत साल पुराने से, मतलब हिस्टोरिकल टाइम से देखा गया कि राजस्थान जो है मिनरल जोन है हमारा ना. वहाँ पे जो वर्कर्स काम करते हैं, जो ये फैक्ट्रीज में काम करते हैं, बीच में ये देखा गया था 2015 में दिस राजस्थान
एपिडेमिक डिसीजेज अटैक 1957 के तहत ये चीज़ नोटिस किया गया था कि वहाँ के वर्कर्स को सिलिकोसिस की बीमारी हो रही है या सिलिकोसिस की सिम्टम्स दिख रहे हैं। सिलिकोसिस होता क्या है, जब व्हेन यू वर्क एट अ मैन्युफैक्चरिंग प्लेस, ठीक है, मेटल्स बनते हैं, सिलिकॉन्स बनते हैं, ये सब बनते टाइम क्या होता है, व्हेन यू ब्रीथ इट, यू इनहेल इट, आप उधर तो नाक बंद करके रह नहीं सकते, प्रिकॉशंस उतने नहीं लिए जाते हैं हमारे लेबरर से, दे वर्क विदाउट अ मास्क और विदाउट एनी प्रिवेंशन। इतने बार क्या होता है, वो सिलिकॉन वो इनहेल करते हैं, जिसके वजह से जो लंग्स वाले एरिया हैं, लंग्स वाली एरिया में सिलिकॉन डिपॉजिट होना स्टार्ट कर देता है एंड इट रीच टू सच अ एक्सटेंट दैट निमोनिया हो जाएगा, यू विल हैव अ ब्रीदिंग प्रॉब्लम, मुंह से खून निकलने के सिम्टम्स होते हैं। तो ये सब सिलिकोसिस के सिम्टम्स हैं। तो ये आर्टिकल यही बोला था कि राजस्थान में ये चीज़ हुआ था, गवर्नमेंट ने कुछ टाइम के लिए इसका वर्क स्टार्ट किया, बट वो इतनी बेनिफिशियली नहीं हो पाया बिकॉज द वेरी मेन रीज़न बिहाइंड इज द ओनर्स को पता ही नहीं कि सिलिकोसिस की बीमारी उनके वर्कर्स को हो रही है, या तो वो क्या करते हैं, वो डायरेक्ट अपने नीचे वालों को बोल के कंपेंसेशन दे देते हैं उनको एंड केस क्लोज कर देते हैं। सो मेन जो इनिशिएटिव है यहाँ से लेने की ज़रूरत है, तभी जाकर ये जो चीज़ें हैं या प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत यहीं से है, देन ओनली दिस सिलिकोसिस प्रिवेंशन कैन बी डन। ठीक है, सो कभी सिलिकोसिस करके एक टर्म आया तो यू शुड रिमेंबर क्या होता है, वो किसको होता है, और हमारे एपिडेमिक एक्ट के अंडर उसको भी एनलिस्टेड किया है। ठीक है, सो राजस्थान's pioneering model, one state Rajasthan with the top share of 17% value of mineral production in the country, has a long history of civil society, was the first to notify silicosis as an epidemic in 2015. In 2015 under the Epidemic Disease Act of 1957 के एक्ट के अंदर 2015 में राजस्थान ने सिलिकोसिस को एनलिस्ट करवाया था। सो सिलिकोसिस इज अ निमोनिसिस family of disease described as a policy which is occupational disease due to the dust exposure which is incurable. इसको क्योर करना is not possible and it shows you permanent disabilities and are totally preventable by अवेलेबल कंट्रोल मेजर्स अगर आप प्रॉपर रखोगे, मास्क यूज़ करोगे, ठीक है, प्रॉपर में प्रिवेंशंस करोगे तो यू कैन कंट्रोल इट। बट एक बार अगर सिलिकोसिस की आपको ये चीज़ हो गई तो यू कांट प्रिवेंट इट। सो गैप इन द सिस्टम में यही बताया है कि वर्किंग जो करना माइनरिंग सेक्टर तो चल रही है, बट सिटीजन्स जो उधर के ओनर्स हैं उन्हीं को नहीं पता कि ये सब हो रहा है, दे गिवन कॉम्पोजिशन और उसको बंद कर देते हैं। Labor code dilution, the persistent attempt to establish an employer-worker relationship on the records have drawn a blank, given mine-owning community a major revenue and to the state. सीधा रेवेन्यू देख के तो उनको ये चीज़ रोकवा देते हैं, which is not right. So proper prevention steps should be taken, जिसमें कि उन्होंने बोला लोकल मैन्युफैक्चरर्स को ये इनिशिएटिव लेना चाहिए कि जो ये डस्ट के रिलेटेड मास्क यूज़ करो, मैकेनिज्म ऐसे रखो कि जो ये सब की रिलीजिंग कम कर पाए। ठीक है, बिकॉज पुराने मैकेनिज्म्स जो हैं वो कहीं ना कहीं इट इज़ हार्मफुल बिकॉज वो उतने डेवलप नहीं है आज के मैकेनिज्म्स के रिलेटेड। सो यू शुड यूज़ सच अ टेक्नोलॉजी जो ये सब चीज़ों को बंद कर पाए आप। सो सिलिकोसिस मुझे समझाना था, अगर हो सके तो याद रखिएगा इसको। ओके, सो दैट वॉज फॉर टुडे। आई होप सो आज की आर्टिकल्स आपको क्लियरली समझी होगी। इफ़ यू लाइक द वीडियो, do like and subscribe the channel. Thank you.